नाउ बेटा, कल हमने कुछ टर्म्स की थी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यदि हम रिवाइज करें थोड़ा, जस्ट अ मिनट, आई थिंक हियर इज दैट area of circle you know very well, that is pi r square, where r is stands for radius of the circle, that is equidistance set of all point which is equidistance from the fixed point. This is known as our sector. So area of circle is pi r square, and area of sector, if theta is the angle, we learn just formula, that is 3 upon theta upon 360 into pi r square. It's our major sector, because sector is sector is the figure by an arc and the radius, two radius and an arc. Okay, तो मेजर सेक्टर का एरिया यू नो वेरी वेल, 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यदि बेटा ये एंगल 60 डिग्री का होता है तो ये कौन सी ट्रायंगल बन जाते हैं, हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला आपको पता है, √3/4 ए स्क्वायर। वन मोर टर्म इज यूज देयर बेटा, व्हाट इज दैट टर्म? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस बोल दीजिए या पैरामीटर बोल दीजिए। पैरामीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला यू नो वेरी वेल, दैट इज 2πr, that is 2 pi r. R same again, radius of circle, radius of circle. Now beta, there is one more term used we have here, that is segment. What is segment? Segment is the space occupied by an chord and an arc, a chord and an arc. So this is minor segment. और एरिया ऑफ सेगमेंट इज, यू नो वेरी वेल, एरिया ऑफ सेक्टर में से बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट? सेम, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यू विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ओके बेटा, ये कल का रिवाइज था स्मॉल। नाउ 12.1, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गाइस सेइंग? ही इज सेइंग द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल which has circumference equal to the sum of two circles, circumference equal to the sum of two circles। सिंपली बेटा उसने क्या कहा है, we have two circle of radius, that is one circle radius is 9 centimeter plus second circle radius is 19 centimeter। He is saying making a circle by joining these two circle having circumference equal to those two circle circumference। Okay, he is saying देखिए बेटा, the radius of two circle are 9 centimeter and 19 centimeter respectively। Find the radius of the circle has circumference, find the radius of the circle has circumference equal to the sum of circumference of these two circle। अब देखिए बेटा, सिंपली लेट द रेडियस ऑफ द दैट सर्कल बी, रेडियस ऑफ दैट सर्कल बी कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल आर। नाउ circumference of that circle will be, you know very well, that is 2 pi capital R, and circumference of that circle will be same 2 pi, suppose this is R1 and this is R2, so circumference of this circle is 2 pi R2 plus 2 pi R1। Okay, now 2 pi is common from these two sides, this implies 2 pi is common, what you will get, R1 plus R2 is equal to 2 pi capital R। आपको पता है बेटा these two terms are cancel out, R1 plus R2 is equal to capital R, R1 plus R2 will come capital R।
What is R1? You know very well, that is 9 centimeter. What is R2? That is 19 centimeter is equal to R. So this implies capital R, radius of circle will become 19 plus 9, that is 28 centimeter. Simply बेटा, he is saying, देखिए बेटा दोबारा क्वेश्चन क्या है हमारा, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। हमने क्या किया, सिंपली इन दोनों सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस को ऐड किया, उसको इक्वेट कर दिया एक थर्ड सर्कल जिनकी सर्कमफ्रेंस इसके इक्वल है बेटा, 2 पाई आर। लेट द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विल बी कैपिटल 2 पाई आर। इफ रेडियस ऑफ दिस सर्कल बी कैपिटल आर, therefore circumference will become 2 pi r, and this circumference will become 2 pi r1 if r1 is the radius of small circle and r2 be the radius of large circle. 2 pi r1 plus 2 pi r2 is tends to 2 pi r. You know 2 pi is common, that is r1 plus r2 is equal to 2 pi r. 2 pi से 2 pi cancel out, r1 plus r2 is equal to r. r1 is 9 plus r2 is 19, so r is 9 plus 19, that is 18 centimeter. तो कैपिटल सर्कल की रेडियस कितना होगी बेटा, 28 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन, इन सेम मैनर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता था, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 centimeter and 6 centimeter. This is our 6 centimeter and this is our 8 centimeter. Find the radius of the circle having area equal to the sum of area of these two circle. हमें बेटा इस सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के सम्स के एरिया के इक्वल है। लेट द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विल बी, लेट रेडियस of required circle will be capital R. This is known as same small r1, ये suppose मान लिया बेटा r1, ये suppose r2. Now area of circle you know very well, that is इस सर्कल का एरिया क्या होगा बेटा, आप कहेंगे सर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड इन दोनों सर्कल का सम का एरिया क्या होगा, पाई स्मॉल r1 स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r2 स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यू नो वेरी वेल, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, बिकॉज पाई गोइंग टू दैट साइड इन डिवीजन, पाई टू पाई कैंसिल आउट, सो आर स्क्वायर विल कम r1 स्क्वायर, that is 8 square plus r2 square, that is 6 square, so 64 plus 36, I think 100 is equal to 100. तो r की वैल्यू क्या आई बेटा, that is plus minus 10, but minus 10 is rejected. why बेटा रिजेक्टेड, क्योंकि जो रेडियस है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो आर की वैल्यू क्या आई आपकी 10 सेंटीमीटर, ओके। सेम मैनर में बेटा इस क्वेश्चन में ही इज टॉकिंग अबाउट द सर्कमफ्रेंस, सो वी पुट द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस। इन दिस क्वेश्चन ही इज टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ द सर्कल, सो वी पुट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, नाउ देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन में हमें जो गिवन है ये रिंग्स गिवन है, आपने देखा होगा 12 फिगर 12.3 शोज द रिंग्स ऑफ द अलग अलग कलर्स में, दैट इज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ओके बेटा। आफ्टर दैट ही इज सेइंग diameter respectively gold score is I think 21 centimeter, okay, 21 centimeter,
जो डायमीटर है बेटा, जो गोल्ड है उसका 21 सेंटीमीटर है, एंड ईच बैंड विड्थ इज 10.5 सेंटीमीटर। अगेन जो नेक्स्ट बैंड विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर की बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द ईच रीजन, हमें एरिया निकालना है बेटा, सिंपली बेटा। सबसे पहले तो देखिए, पहली रिंग की किस चीज़ की है बेटा, हमारी गोल्ड की। पहली रिंग हमारी गोल्ड की है, ओके। इसका डायमीटर गिवन है दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा गोल्ड का, देयरफॉर रेडियस ऑफ गोल्ड, रेडियस रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन का रेडियस क्या होगा बेटा, यदि डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस आप कहेंगे सर 21/2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या होगा बेटा, गोल्ड रीजन you know very well that is pi r square, pi into r square, that is pi multiply, pi की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई r इज 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, that is 7 3s are 21. After solving this you will get the area of the gold region, okay. Now next area, सेकंड एरिया बेटा किसका है, इज गिवन रेड, दैट इज फर्स्ट रिंग इज आवर गोल्ड रिंग, दैट इज गोल्ड रिंग। और अब क्या कौन सी रिंग है बेटा, रेड रिंग, रेड रिंग बेटा। ये 21/2 है, 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। उसने कहा जो नेक्स्ट विड्थ है, विड्थ बेटा ये जो विड्थ है नेक्स्ट विंग की विड्थ है वो भी 10.5 सेंटीमीटर। विड्थ कहाँ है उसने बेटा 10.5, तो टोटल रेडियस ऑफ द रेड, इस कंप्लीट सर्कल की रेडियस क्या होगी बेटा, यू नो वेरी वेल दैट इज C2 की रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ C2 सर्कल, रेडियस ऑफ C2, ये C1 सर्कल मान लिया हमने, C2 सर्कल की रेडियस क्या होगी, आप कहेंगे सर 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 21 सेंटीमीटर। बट बेटा एरिया हमें ये निकालना है, कौन सा एरिया निकालना है हमें, कौन सा एरिया निकालना है हमें, ये वाला एरिया। बेटा ये एरिया कैसे निकलेगा, यू नो वेरी वेल, ये एरिया कैसे निकलेगा, आप कहेंगे सर कैपिटल सर्कल के एरिया में से स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस, कैपिटल सर्कल एरिया में से स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस कर दे, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल C2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल C1, दैट इज रेड एरिया में से बेटा गोल्ड का एरिया माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ दैट, दैट इज पाई 21 होल स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, दैट इज C1 21/2 होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाई पाई इज कॉमन बेटा, 21 स्क्वायर माइनस 21/2 स्क्वायर, a square minus b square, a minus b, a plus b. After solving this you will get the answer. Again for third reason what we will do beta, third reason, this is our gold, this is our red region, now this is our black or blue जो भी given है बेटा वो region, this will come our C3 circle। और आपको पता है बेटा जो ये एरिया है वो कैसे निकलेगा, यू नो वेरी वेल, दिस एरिया विल बी गेट बाय एरिया ऑफ सर्कल C3 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C2, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल C3 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C2। Just after solving this you will get same
answer. And doing that way, or you will find the area of 5 scoring region, that is first, second, third. In same manner you will get the area of next region and then the next region. Okay, any doubt beta? Just hold it, just a minute. Any doubt? Our next question is beta, हाँ जी बोलो. देखिए बेटा, we have a scoring region in this form. आपने देखा होगा फिगर 12.3. डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन इज 21 सेंटीमीटर गिवन है बेटा, एंड ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड. ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड. ही इज सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ द कलर रीजन. जो भी है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 रीजन शोडेड बाय गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट. ओके, तो बेटा देखिए सबसे पहला रीजन क्या है हमारा, गोल्ड रीजन, जिसका डायमीटर गिवन है हमें 21 सेंटीमीटर. डायमीटर गिवन है बेटा, नॉट रेडियस. तो रेडियस क्या होगी गोल्ड रीजन की, 21/2. तो एरिया क्या होगा गोल्ड रीजन का, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई मल्टीप्लाई आर. आर क्या है बेटा, 21/2 इंटू 21/2. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन. अब देखो बेटा, एरिया ऑफ रेड रीजन. रेड रीजन कौन सा है, ये वाला पोर्शन, जो ये पोर्शन है, दिस इज ओनली द रेड रीजन. ओके, अब ये एरिया कैसे निकलेगा बेटा, नेचुरल बात है, आप कहेंगे सर एरिया ऑफ कैपिटल सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, दैट इज एरिया ऑफ C2, एरिया ऑफ सर्कल C2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C1. यानी कि रेड रीजन वाले पूरे सर्कल से यदि गोल्ड रीजन का एरिया निकाल दिया जाए तो यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस रीजन. ओके, तो रेडियस ऑफ C2, अब रेडियस ऑफ C2 की गिवन कितनी है बेटा, हाउ मच बी देयर, दिस C1 की रेडियस you know very well 21/2. 21/2 will become 10.5, and he is saying every band width is 10.5 centimeter wide. Every band width is 10.5 centimeter wide. So radius of C2 will become 10.5 plus 10.5, that is 21 centimeter. तो एरिया ऑफ सर्कल C2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C1, दैट इज पाई आर स्क्वायर. बेटा C2 की रेडियस गिवन है 10.5 प्लस 10.5, दैट इज 21 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल C1, दैट इज पाई इंटू 21/2 का होल स्क्वायर. पाई इज कॉमन, 21 स्क्वायर माइनस 21/2 complete whole square. After solving this you will get the answer. Third region beta, now third region is our what is that, blue. Blue, तो आपको पता है बेटा ये एरिया कैसे निकलेगा, इन सेम मैनर. आप कहेंगे सर एरिया ऑफ सर्कल C3 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C2, एरिया ऑफ सर्कल C3 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C2, एरिया ऑफ सर्कल C3 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C2. बट C3 सर्कल की रेडियस कितनी है बेटा, दिस इज 10.5, दिस इज अगेन 10.5, दैट इज कंप्लीट विल बी 21, and this is again plus 10.5. So radius of circle C3, radius of circle C3 is equal to 10.5 plus 10.5 plus 10.5. Okay, that is 31.5 centimeter radius of circle C3, and radius of circle C2 is you know very well 21 centimeter. Okay, so pi 31.5 square minus pi 21 square. In same manner we get the area of next circle and next circle. Any doubt beta?